Hello students, today I am going to start online classes for class 8th and I have selected the topic metals and non-metals. So, let us see about metal and non-metal. First of all, I am going to discuss physical properties of metals. So, let us see physical properties of metal and non-metal both. First of all, I will tell you about physical state. Physical state of metals. Generally, metals exist in solid state and there is only one metal, mercury, which exists in liquid state at room temperature. Okay. So, generally all metals exist in solid state, but there is exception. Mercury is the metal and it exists in liquid state at room temperature. So, mostly the metals exist in solid state, but mercury it exists in liquid state. Okay. And now, physical state of non-metals. Non-metals exist in liquid, solid and gaseous state, but mostly exist in solid and gas state. There is one exception, bromine. It is non-metal, and this is the only non-metal which exists in liquid state. So, it exists in liquid state. Okay. So, this is exception and this is also exception. So, metals generally exist in solid state, but mercury is the only metal which exists in liquid state at room temperature. Okay. And what about non-metals? Non-metals exist in solid and gaseous state, but there is one exception, that is bromine. It is non-metal and it exists in liquid state. Okay. Now, we discuss another property, that is malleability. What is malleability? When metals are hammered, they can be beaten into thin sheet, and this property of metal is called malleability. So, most of the metals are malleable. So, malleability means can be beaten into thin sheet.
when force is applied, metals can be beaten into thin sheet, and these sheets are very useful in our daily life. Now, another property of, we can at the same time, what about non-metals? Non-metals, when non-metals are hammered, generally they break into pieces, and this property is called brittleness. So, non-metals are they break into pieces, As you know, carbon is very common element and it is non-metal, okay, and it has some forms. These forms are called allotropes. So, carbon it is non-metal and it exists in some other forms like graphite, diamond, coal. Okay. Diamond, it is hardest substance. It is non-metal, but it is hardest substance. Okay. So, these are the forms of carbon and these forms are called allotropes. Okay. Now, one more physical property, this is ductility. Means generally metals can be drawn into thin wires and these wires are used for various purposes. So, the property by which the metals can be drawn into wires, this is called ductility. So, they can be drawn into thin wires like silver, gold, copper, aluminium, iron. These are some metals which are very commonly used for making wires. So, this property is called ductility, means metals can be drawn into thin wires. Now, take a screenshot of it. Now, let us describe this topic in Hindi also. Physical properties of metal and non-metal. तो मेटल और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज मेटल, ज़्यादातर मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल है
जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, और इसी तरह नॉन मेटल, सॉलिड और गैसियस, यानी कि कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीन्स मेटल्स को यदि हैमरिंग किया जाए, हथौड़े से पीट पीट कर हैमरिंग किया जाए, तो इनसे एक थिन शीट बनाया जा सकता है और ये शीट अलग अलग कामों में यूज़ की जाती है। सो दिस प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद नॉन मेटल। तो नॉन मेटल को यदि हैमरिंग किया जाएगा, फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो नॉन मेटल छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो सकते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है और ये अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, और वो फॉर्म है ग्रेफाइट, डायमंड, कोल। ठीक है, इन फॉर्म्स को, जो अलग अलग फॉर्म में पाया जा रहा है नेचर में, इसको एलोट्रॉप कहते हैं। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये हुआ कि मेटल्स से पतले वायर बनाए जा सकते हैं, यानी मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको खींच करके पतले वायर बनाए जा सकते हैं। दे कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी ऐसे मेटल्स हैं जो कि ज़्यादातर वायर्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नाउ अगेन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Metals have very high melting point and boiling point, means metals का melting point और boiling point very high होता है, it is very high। ठीक है, they have very high melting point and boiling point both। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गैलियम, एंड सीजियम। दीज आर मेटल्स, मीन्स गैलियम और सीजियम ये मेटल्स हैं एंड दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है,
इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है, 31 और 29 इसके आसपास होता है। तो इस तरीके से अगर देखो तो गैलियम और सीजियम, these metals have very low melting point, but generally metals have very high melting point, यानी metals का जो melting point या boiling point होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं लस्चर। Metals have metallic shine, means freshly cut surface of metal gives shine, यानी metals का जो surface होता है वो चमकदार होता है। This property is called metallic luster, ठीक है। So metals have shining surfaces, ठीक है। तो मेटल्स का जो सरफेस होता है वो चमकदार होता है। फ्रेशली कट सरफेस ऑलवेज गिव शाइन, ठीक है। उसी जगह पर जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स they do not have they do not give shine, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल्स नहीं चमकते हैं। एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन ये नॉन मेटल है लेकिन ये चमकदार होता है, मीन्स इट हैज लस्टर, इट इज लस्टरस, इट इज लस्टरस। तो आयोडीन जो है वो लस्टरस होता है, ठीक है। वन मोर थिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल conductivity. Electrical conductivity means through metals electric current can pass very easily. So metals are good conductor of electricity and this is called electrical conductivity. So mostly जो metals होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास होती है। तो मेटल्स एक तरीके से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मीन्स कि मेटल्स, ज़्यादातर मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो कर सकती है, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल्स हैं उसमें सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो कि ये बेस्ट कंडक्टर है। इट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
उसी जगह पर लेड, it is Pb, lead. It is bad conductor. Pb is bad conductor. तो ये भी मेटल है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सिल्वर मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, these metals are good conductor of electricity and they are used, means especially aluminum is good conductor of electricity. It is not the best but it is good conductor of electricity. इसीलिए these metals are used in transmission of electricity, मीन्स इलेक्ट्रिक वायर बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है हमारा डेंसिटी। जनरली मेटल्स हैव वेरी हाई डेंसिटी। ठीक है, metals have very high density. ठीक है कि मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक दो एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। These metals have very low density. So these metals have low density. Okay. तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक्सेप्शन जैसे गैलियम और सीजियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है कि अगर इन मेटल्स को हथेली पर रख लें तो थोड़ी देर बाद ये मेटल्स मेल्ट कर जाते हैं। ठीक है, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। लस्टर मीन्स मेटल चमकदार होते हैं। यू ऑल नो इट वेरी वेल। दिस प्रॉपर्टी यानी कि इसी प्रॉपर्टी को ही हम मेटालिक लस्टर कहते हैं या मेटल्स आर लस्टरस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोस्टली जो भी मेटल्स हैं वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से पास हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से डेंसिटी, मेटल्स हैव वेरी हाई डेंसिटी, यानी इनका डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक्सेप्शन जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Now this class is over today and we will discuss some other properties like chemical properties in the next video. Thank you students.